بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ادارے کے اندر آپ کو لے کے آئے ہیں کہ شکایات، تو میرے پروگرام کا نام بھی شکایت ہے۔ ہم بہت سارے اداروں کی شکایت کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس ادارے کی شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سارے انسانوں کی جان بچا چکا ہے، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک جو پودا تھا، یہ اکتوبر 2004 کے اندر یہ پودا لگایا گیا۔ آج وہ ایک بہت بڑا درخت بن چکا ہے، جس کی شاخیں نہ صرف پنجاب کے اندر، یہ پنجاب میں ایک پودا لگایا گیا تھا، نہ صرف یہ پنجاب کے اندر بلکہ گلگت بلتستان، کشمیر، KPK، اس کے بعد بلوچستان میں، سندھ میں، پورے پاکستان کے اندر پھیل چکی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ باعث مسرت اور باعث فخر بات یہ ہے کہ اس ادارے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اقوام متحدہ UNO سے سرٹیفائیڈ ادارہ ہے یہ۔ UNO نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ پورے UNO کے اقوام متحدہ کے SOPs کے اوپر بہترین جو ہے پورا اترتا ہے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اور سرٹیفائیڈ ادارہ ہے۔ اس میں یہ میں اگر بات کروں تو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہے وہ واقعی سلام کے مستحق ہیں، جو اس کے بانیوں میں سے ہیں، جنہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے تیار کی۔ وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو یہ پورے پاکستان میں یہ پھیل گیا۔ پھر آج جس طرح یہ انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ 23 ممالک سے یہاں پہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، جن کا کام یہ نہیں ہے، وہ ملک نہیں ہے کہ یہ UK سے آیا ہوا ہے، یہ نیپال سے آیا ہوا ہے، یہ جاپان سے آیا ہوا ہے، یہ کوریا سے آیا ہوا ہے، یہ ملیشیا سے آیا ہوا ہے، یا کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے، یا نیپال سے آیا ہوا ہے۔ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ریسکیو کیسے کرنا ہے، انسانوں کی جان کیسے بنانی ہے۔ میں 1122 کی بات کر رہا ہوں، جو 1122 کہتے ہیں کہ ان کو کال کریں اور اگلے 7 منٹ میں ان کی گاڑی اور 3 سے 4 منٹ میں موٹر بائک جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ اب کیا پنجاب میں ہر تحصیل میں پہنچ چکا ہے؟ آگے کیا ایجنڈا رکھتے ہیں؟ تو میں اس پروگرام میں جو ہے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گا، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپوکس پرسن 1122 فاروق صاحب کی طرف جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتار چڑھاؤ 1122 میں کیا کیا آئے اور کس کس طریقے سے اس کو؟ یہ دیکھیں آج یہاں پہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے تقریباً 9 ممالک تو یہاں پہ موجود ہیں، 27 ممالک جو ہے اس وقت یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی وقت دینے کا اور اتنا بڑا ایونٹ جو ہے اس میں مدعو کرنے کا۔ اس میں مصروفیت کے باعث ٹائم نکالنا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کہانی۔ تو 2004 میں یہ پودا لگا اور پھر یہ اس وقت ایک بہت بڑا درخت بن چکا ہے، اس کی شاخیں جو ہے پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ تو کیا کیا اس پورے 2004 سے لے کے اب تک جو ہے آپ چونکہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس میں، تو کیا کیا مشکلات آئی اور کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر آپ نے نام روشن کیا؟ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک لفظ میں کہانی بیان کروں تو آج کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈر ایمرجنسی سروسز سر ڈاکٹر رضوان نصیر ہیں، آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے جی، یہ تو اپریشیٹ، کیونکہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ایک یقین کیجئے وہ ایک فرشتہ ہیں۔ انہوں نے یہ پودا جب لگایا تھا تو انہوں نے دن رات ایک محنت کی۔ ہیپی برتھ ڈے جی ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، آپ کو اللہ پاک اور زندگی سے تندرستی والی لمبی زندگی دے، تاکہ آپ اسی طرح جو ہے عوام اس کی پیورلی خدمت کے لیے، کوئی اس میں لالچ نہیں ہے، خدمت کے لیے کام کرتے رہے۔ دیکھیے میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو آج کا دن ہے، یہ تو اسپیشلی یہ کریڈٹ گوز ٹو ہم، وہ فاؤنڈر ایمرجنسی سروسز کے ڈاکٹر رضوان نصیر کے، اور ان کے متعلق یہ میں ان کی کوئی مدح سرائی نہیں کر رہا، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی دن رات کی محنت اور صبح و شام انہوں نے ایک کر دیا، اور اس ایمرجنسی سروس کے لیے اور پھر پاکستان کے نام کے لیے وہ دنیا کے شاید کونے کونے میں گئے، کہاں کہاں گئے، اور انہوں نے آج پاکستان کی اس ایمرجنسی سروس کو یہاں پہ سٹینڈ کیا ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ اس لاہور کے اندر 200 ریسکیورز تھے، کچھ چند ایمبولینسز تھیں، 2-4 اسٹیشن تھے، اور آپ آج کا منظرنامہ دیکھیں کہ کروڑوں لوگوں کو ریسکیو 1122 ریسکیو سروسز فراہم کر چکی ہے۔ اور وہ ایمبولینس سروس جو ایمبولینس سروس سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے ساتھ فائر سروس اٹیچ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ہماری موٹر بائک ریسکیو سروس اٹیچ ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری اسپیشلائز ریسکیو سروس اٹیچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ سروس پوری دنیا میں اپنا نام کماتی ہے اور یونائٹڈ نیشن انسرا کی سرٹیفکیشن حاصل کرتی ہے۔ یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسائے ہم سے کئی گنا بڑے ہیں، ان کے پاس یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے، اور پاکستان ریسکیو ٹیم کے پاس سرٹیفکیشن ہے۔ اور آج یہاں پہ جو اتنا خوبصورت
माहौल है जो ये सिर्फ रेस्क्यू के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एजाज़ की बात है, जहाँ पे बहुत सारे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, बहुत सारे जो मुल्क के बदख़्वाह हैं, वो इस तरह की प्रोपोगेशंस करते हैं। यहाँ पे आज इंग्लैंड भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, और इसके अलावा फ़िलिपीन भी मौजूद है, और आप दुनिया के दूर दराज के लोगों से, UN सेक्रेटेरिएट जनेवा से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, 23 मुल्क यहाँ पे 274 डेलीगेशन आए हुए हैं। ये बात रेस्क्यू से कहीं बढ़ के है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक, जिसको कहते हैं ना कि खूबसूरत हवा का झोंका है कि यहाँ पे 23 ममालिक से 274 लोगों का आना, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि ये वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। यहाँ पे जो फ्लैग लगे हुए हैं, जहाँ पे जो मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं, जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, जिनके चेहरे मुख्तलिफ हैं, जिनकी रेसेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो रेस्क्यू के नाम से यहाँ पे इकट्ठे हैं, और उन तमाम लोगों का सिर्फ एक मकसद है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वो किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े हैं, वो किसी क्लैश में नहीं पड़े हैं, और वो किसी क्लैश में पड़ना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ है। ये मेरे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है, और इस एजाज़ को सेलिब्रेट करने की बात है। फारूक साहब, मेरा सर फख्र से बुलंद था कि हम एक गरीब ममालिक के अंदर हमारा शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे जब इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए, बात ठीक है कि मकसद एक ही था यहाँ पे इकट्ठे होने का कि इंसानियत को बचाना है, एक ज़िंदगी जो है उनको कैसे बनाना है, जो है रिकवर करना है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन वो आपस में जब गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीन कीजिए इस बंदा नाचीज़ का सर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से फख्र से बुलंद था। वो ये कह रहे थे कि हम सोच भी नहीं सकते ये जो कर रहे हैं, हम ऐसा करना दूर की बात, जिस तरीके से जज्बा जो पाकिस्तान के अंदर था, वो हमारे नौजवान, वो साथी, वो जज्बा ही था, जज्बे के ऊपर बिल्डिंगों से निकल रहे हैं, कुएं के अंदर जा रहे हैं, क्या बात थी। देखिए, ये कोई आम सा किस्सा कहानी नहीं है, ये रेस्क्यू 1122 के पीछे हमारे शोहदा की कुर्बानी है, हमारी सीनियर टीम जिनको हम पायनियर बैच कहते हैं, उनकी दिन रात की मेहनत है। और मैं तो अपनी टीम के लिए ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अकेले ही चले थे जान बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ठीक है, इस कारवां में बड़े खूबसूरत नौजवान गर्म लहू के शोहदा शामिल हैं, जिन्होंने अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, यकीन करें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि शोहदा की वाल दिखाऊं, और आप वो जो जगह है वो हमारी, जहाँ से हम नमाज के लिए जाते हैं, वुजू करने के लिए गुजरते हैं, तो मैं उनके चेहरे रोज़ देखता हूँ। तो ये जो मेरी फीलिंग है ना, ये फैक्ट्स फीलिंग है कि मैं जब उनको देखता हूँ ना, तो मैं उनके चेहरे देख के कहता हूँ, मैं आज आपको उनको चेहरे भी दिखाऊंगा जो हमारे शोहदा हैं, तो मैं उनके देख के कहता हूँ कि तुम इस जमीन के लिए बने ही नहीं थे, तुम बने ही किसी और जमीन के लिए थे। तो उन लोगों की मेहनत, कुर्बानी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही है। फारूक साहब, इस वक्त ये पीछे कैंप भी लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक के, इनका क्या मकसद है कैंप लगाने का, या हर मुल्क का अलग अलग फ्लैग? देखें, अगर आप चाहते हैं तो हम वहाँ पे वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। फारूक साहब, ये जो है, ये जो जवान है, ये कहाँ से आए? सर, वी से कि ये जवान नहीं है, ही इज द रेस्क्यूर। यहाँ पे जो तारफ है, यहाँ पे जो तारफ है रेस्क्यूर है, ही इज फिलिपाइन, ही इज फ्रॉम फिलिपाइन, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू इंटरेक्ट विद हिम डायरेक्टली। ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, हिज फीलिंग एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैलेंज, प्लीज। हाय। Hello, sir. Hello, sir. I am from the Philippines, so I am Captain Vincent Albert Cachutrena from the Bureau of Fire Protection. But we will be representing the Camarines Sur Provincial Disaster Risk Reduction Management Office from the province of Camarines Sur in Bicol, in the Philippines. Yes, sir. Thank you so much. ये देखे, उनके अंदर एक जज्बा है, वो आपकी बात ठीक है कि वो यहाँ पे कोई फिलिपाइनी, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक रेस्क्यू वाले हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जिन शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा था, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज की विसल हो गई है, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम उन्हें पकड़ते हैं और उनकी जो गोल्डन नहीं थी, उनसे गुजारिश करते हैं, की बातें करते हैं, उनसे टाइम लेने की कोशिश करते हैं। तो 1-2 मिनट हम कोशिश करते हैं उनसे बात। ये हमारे लिए लक की बात है कि आज उनकी बर्थडे भी और मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अभी वो आ रहे हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे मिल भी लेते हैं। जी बिल्कुल, फारूक साहब ने ठीक फरमाया कि इस वक्त जो है हीरो
वाकई ही ये पाकिस्तानी कौम के लिए हीरो हैं। ये पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो हमारे सामने डॉक्टर रिजवान नसीर साहब वो सामने मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आपको जन्मदिन मुबारक हो जी, अल्लाह पाक आपको हज़ारों साल ज़िंदगी दे और ऐसे तंदुरुस्त तवाना रहे। थैंक यू जी। बस आज थिंक बड़ी हमें आज खुशी है कि आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज हो रहा है। जो आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक जंजला आया तो एक बेबसी का सा आलम था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम एक इंटरनेशनल जो है वो रेस्क्यू चैलेंज यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ना सिर्फ इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज हो रहा है बल्कि आज ही हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसरा की एक्सरसाइज है वो भी लाहौर पाकिस्तान में हो रही है और उसमें 23 ममालिक शिरकत कर रहे हैं और तकरीबन 270 से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये आज बहुत बढ़िया बात है कि पाकिस्तान में हम ये कैपेसिटी बिल्ड कर सके हैं। लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ है कि दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफ़ान, जंजला हो चाहे आग, आज उनको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। एक नंबर वो डायल करते हैं 1122, तो उनको आज सर्विसेज मिलती है। और नाज़रीन मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि एक फरिश्ता सिर्फ इंसान जिनको हमने हैप्पी बर्थडे भी इंट्रो में कहा था, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब वो हैं। जब 2004 के अंदर जब ये पौधा लगाया गया था तो इस शख्सियत ने अपने हाथ से लगाया था। और बात ठीक है कि 2006 का जल्जला जो है इन्होंने आंखों से देखा और वो देख रहे थे 2005 का सॉरी। और आज उन्होंने जिक्र भी किया कि आज हम पूरी दुनिया के अंदर और यही शख्सियत मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, आई सैल्यूट यू सर, कि पाकिस्तान का नाम आपकी वजह से रोशन है। तो सर को ये कहता था कि नामुमकिन बात है, पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सब चीज़ों का पोटेंशियल है और करके दिखाया है पाकिस्तान ने। सो अगर व्हेन देयर इज़ अ विल तो फिर देयर इज़ अ वे। एंड इसके लिए लेकिन कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए, जो हमारे कायद ने कहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बाकायदा रजिस्टर्ड है 1112 रेस्क्यू पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, पूरे जनूबी एशिया में पहली सर्टिफाइड टीम है। सर्टिफाइड टीम है, अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड पहली टीम है पूरे जनूबी एशिया के। एक मेरे लिए बड़ी वाकई मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैं फारूक साहब से भी अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे अभी आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी जिस तरीके से ये कर रहे हैं हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह करना। ये जज्बा है, ट्रेनिंग है, क्या है? ये जज्बा भी है और ट्रेनिंग भी है, दोनों होनी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ जज्बा हो लेकिन साथ लोग ट्रेंड ना हो तो उसका भी फायदा नहीं है, और अगर ट्रेंड हो लेकिन जज्बा ना हो तो फिर भी नहीं चलता। सो दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। इससे डॉक्टर साहब एक चीज़ तो पैगाम गया पूरी दुनिया के अंदर कि हमारी कौम के अंदर जज्बा भी है और हर काम करने की सलाहियत भी रखते हैं, टैलेंट मौजूद है। जिस तरह 1112 के अंदर लोगों के अंदर जज्बा है, एक पूरा सा गरीब मुल्क होने की वजह से भी हमने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा इदारा बनाया जिसके अंदर कोई सिफारिश, बात ठीक है ना सिफारिश है ना करप्शन है, कोई किसी को इस पे प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जी। आई थिंक अगर यही चीज़ें हो और पूरी मेहनत, लगन, दयानतदारी से आप काम करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वही जो कहते थे मुमकिन नहीं है, आज ना सिर्फ मुमकिन हुआ बल्कि ये पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसराग एक्सरसाइज यहाँ पे होल्ड करना, इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज होल्ड करना, 23 ममालिक का यहाँ पे आना, ये सब ख्वाब सा लगता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। सिर्फ 2 क्वेश्चन है कि 8 इदारे या 8 सेक्शन आपके काम कर रहे हैं, इसके अंदर इतने को होंगे, बाइक वाला सेक्शन है एक, मुख्तलिफ हमारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज है। एम्बुलेंस सर्विस से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक में इजाफा हुआ गुंजानाबाद इलाकों में तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। तो जहाँ पे आज एम्बुलेंस सर्विस ने 1.5 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया, 26 लाख लोगों को हमने रेस्क्यू किया मोटर बाइक से। 4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा है, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी एक अचीवमेंट है। फिर फायर सर्विस के बुरे हालात थे, फायर सर्विस का हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज 2,40,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया और अब तक 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। सर ये एयर एम्बुलेंस जो है, ये सर्विसेज जो आगाज़ किया गया, इसका कैसा एक्सपीरियंस है? हमारा पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस जब हमें मिली तो हम उसका बाकायदा डेटा, रिकॉर्ड, सारी चीज़ें रखते हैं। कुछ इलाके ऐसे थे जो बहुत दूर दराज है, बहावल नगर हो गया, बक्कर हो गया, मियाँ वाली हो गया, वहाँ से कोई 1540 केस ऐसे थे 2023 के अंदर, जिसमें 4 घंटे से ज़्यादा लगे। जो हार्ट पेशेंट या सीरियस हेड इंजरी के पेशेंट्स थे उनको जाने में, तो उनके लिए खसूसी तौर पे फिर ये जिस वक्त जैसे ही हमने वज़ीर आला पंजाब को ये डेटा प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि जी हमें इनको भी एक्सेस देनी चाहिए। तो वहाँ से फिर एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ हुआ। आज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स हमें शुरू में आए, मुश्किलात थी काफ़ी सारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा वो सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया और आज दूर दराज के इलाके को भी आज एयर एम्बुलेंस, एयर रेस्क्यू सर्विस मौजूद है, जो कि वहाँ पे कोई भी सीरियस पेशेंट होता है उसको हम अब शिफ्ट करते हैं। पूरे पंजाब के अंदर हर तहसील हेडक्वार्टर में ये 1112 हर तहसील में और अब बड़े टाउन्स में भी जो है वो सर्विस जा रही है। तो इसलिए तकरीबन हर जगह को अब कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे कुछ सर्विसेज जो है वो अवेलेबल ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पंजाब के अंदर
लोगों को, ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, उनको भी आप यहाँ से देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को आप देख रहे जी पूरे यहाँ से हम ट्रेन करते हैं उनको सर्विस, बाकी वो अपने वहाँ पे चलाते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनकी सारी चीज़ों में हेल्प करना, उनको सर्विस हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब के अल्लाह का शुक्र है जी, वी बीन एबल टू, ताकि सारे पाकिस्तानियों को ये हक हो पाकिस्तान में लोगों को कि कोई भी इमरजेंसी होगी तो एक टीम उनके लिए मौजूद होगी जो कि उनकी मदद करेगी। अच्छा, मैं कुछ सियासी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट ये है कि हुकूमतें 2004 से लेके आज तक दो चेंज होती रही, लेकिन डॉक्टर रिजवान नसीर साहब सबके, चूँकि डॉक्टर रिजवान साहब का ज़ाती एजेंडा नहीं था, सबके फेवरेट रहे। बल्कि एक दफ़ा आपने थोड़ा सा एतराज़ भी हुकूमत पे किया कि हमारी गाड़ियाँ जो है बाद में आ गई, कि गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं जी, हम एक फलाह के लिए काम कर रहे हैं। तो वो आपकी शिकायत जो है, शिकवा जो था, बड़ी मोहब्बत वाला था, वो गवर्नमेंट ने फ़ौरन किया। तो कैसे आप इस बात को कैसे? देखिए, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें चैलेंज रहते हैं और हमेशा फंड्स का चैलेंज रहता है, ये वो, बट उसके बावजूद असल चैलेंज तो ये होता है कि उन्हीं मुश्किलात में रहते हुए काम करना। और कोई हमारी सियासी सर्विस तो है नहीं, हम ये नहीं पूछते कि आप किससे हैं। तो जब एक बंदा कॉल करता है मुसीबत में, तो हमारी अव्वली तरजीह होती है कि हम उनकी फ़ौरन मदद कर सकें। सर, माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली, उसमें ये रेस्क्यू का बड़ा अहम रोल है। और जिस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ये लगता नहीं कि हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वहाँ पे भी ऐसा सेशन होना चाहिए, ऐसी किताब बुक्स को होनी चाहिए और इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हर बच्चा घर में रेस्क्यू कर सके? जी, हमने ये ऐसा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया, बल्कि बहुत आसान कर दिया हमने, और भी आसान कर दिया उसको। सिर्फ आपने एक ऐप पे जाना है, उसका नाम है पाक लाइफ सेवर। तो मैं लोगों से भी पाक लाइफ सेवर, तो मैं लोगों से अपील करूंगा, फ्री ऐप है, जाएं उस पर, आप उसको डाउनलोड करें और आप भी जिंदगी बचाना सीख सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं जिंदगी बचाने के इस मिशन के अंदर। सर, मैं चाहता हूँ, आपका आज बड़ा स्पेशल डे है, एक तो पूरी दुनिया से लोग 23 ममालिक से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर आपका बर्थडे भी आ जाए। इस मौके पे जो पाकिस्तानी कौम है, जिस तरीके से सर्टिफाइड ये 1112 इदारा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पूरी मेहनत, लगन और दयानतदारी के साथ अगर हम काम करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और उसी तरह से काम करके हमने पाकिस्तान को वो बैनुल अक़वामी सतह पे हमें लेके जाना है और अपने नाम को मनाना है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम ये ट्रामा, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और 1112 की टीम जो है अब उनको रेस्क्यू कर रही है। आई थिंक फिलिपाइनी जो है उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आज ये ट्रामा में जिस तरह हम आए थे, तो ये एक रेस्क्यू कर रही है, ये मलेशिया की टीम है जो इस वक्त आपको रेस्क्यू करती हुई नज़र आ रही होगी। ये मलेशियन टीम है। कि ये जितनी भी टीमें यहाँ पे आई हैं 23rd कंट्री से, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि इंसानियत की जान बचानी है, इंसानियत की फलाह के लिए काम करना है। वो रेस्क्यू है, वो कोई इस वक्त मुल्क नहीं है, ना कोई पाकिस्तान है यहाँ पे, ना मलेशिया है, ना इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं, जापान से आए हुए हैं, कोई मतलब ये नहीं है। वो सिर्फ एक ही उनका मकसद है कि रेस्क्यू करना है, इंसानियत की फलाह के लिए काम करना है। तो आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि जो है पाकिस्तान के अंदर 1112 जो रेस्क्यू इदारा है, वहाँ पे ये पूरा एक सेशन हो रहा है, इंटरनेशनल सेशन हो रहा है। और ये बाकायदा ये इदारा 1112 जो है, ये जनाब अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड इदारा है। ये अली साहब, ये ट्रामा बेसिकली क्या है, इसका मकसद क्या है? ये सब ये बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जिसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि एक पैरामेडिक या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हैं वो कितना अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं और कितने वो ट्रेंड हैं कि जब हम उनको एक सिनेरियो देते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कैजुअल्टीज़ होती हैं या सिंगल कैजुअल्टी होती है या मल्टीपल ट्रॉमा होता है। मल्टीपल ट्रॉमा बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल जो है उसके अंदर जो है वो कोई फ्रैक्चर भी है, कुछ हेड इंजरी भी है, कोई आई या ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। तो जो वो 3-4 चीज़ें को मैनेज कर रहा होता है और उसमें एक प्रायोरिटी रखनी होती है कि किस चीज़ को पहले उसने मैनेज करना है, किस चीज़ को बाद में करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें पहले मैनेज करने वाली जिससे कि जान जा सकती है, जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल करना है या CPR है, और फिर उसकी एक दर्जा बंदी करके और फिर पेशेंट को जो है वो शिफ्ट करना होता है। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का सिनेरियो होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि यहाँ पे 23 मुल्कों की जो ममालिक हैं उनकी टीमें इसके अंदर आई हैं
हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि ये इंसराग चेयर जो इस साल मिली है पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। और क्योंकि जब वो सपोर्टिव होती हैं गवर्नमेंट्स तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं करना आसान होती हैं। और ये सारी सिचुएशन जो है वो एक सिनेरियोज बिल्डअप किए जाते हैं, और एक ट्रॉमा चैलेंज है, फायर फिट है, फिर डीप वेल रेस्क्यू है जो आपने सारे देखे होंगे। तो इसके अंदर उस टीम की जो है वो कैपेबिलिटीज़ चेक की जाती है, और ये सिर्फ चेक नहीं करना होता बल्कि उनसे सीखना भी होता है। हो सकता है कि वो ममालिक हमसे एडवांस हैं, और वो क्यों एडवांस हैं, उनकी क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से वो आगे हैं हमसे, और कुछ चीज़ें वो हमसे भी सीख रहे होते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। मतलब ये ऐसा नहीं है वो हमसे सीखते हैं हम उनसे सीखते हैं, टेक्नोलॉजी है वो लेते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनसे जिससे जदीद तरीकों से वो काम। टू साइड ट्रैफिक होती है जिसके अंदर हम सीख भी रहे होते हैं, वो हमसे भी सीख रहे होते हैं, और हमारे मुल्क की एक पहचान है, एक रिकग्निशन है जिसको वो समझ रहे होते हैं कि हम भी एक अल्हम्दुलिल्लाह इंसराग जो कि पूरी दुनिया जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो है इंसराग सर्टिफाइड हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो कि सर्टिफाइड है इंसराग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रामा है, बेसिकली आपने कहा ब्लीडिंग हो रही हो, कोई फ्रैक्चर हो गई है, तो फर्स्ट एड उसी फौरन मौके पे देते हैं या हॉस्पिटल जो है दे के ले जाते हैं? नहीं सर, हॉस्पिटल तो पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। अगर उसको ऑन साइट हमने स्टेबल ना किया, पेशेंट को मैनेज नहीं किया, तो फिर तो पेशेंट ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक ख़ास लीटर जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड अवेलेबल होता है, और अगर फ़ौरन जो है वो उसको मैनेज ना किया जाए और फ़ौरन प्लाज्मा एक्सपेंडर्स या इस तरह की चीज़ें ना दी जाएँ जिससे कि ब्लड की कमी जो है वो फ़ौरन अगर आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो पेशेंट की जान जा सकती है। देखिए ये 1112 को जब कॉल आती है, ये इमरजेंसी कॉल होती है, जो मौका पे पहुंचते हुए ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? जी, हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम पूरे पंजाब में हम मेंटेन कर रहे हैं वो हम 7 से 8 मिनट में कर रहे हैं, और जो मोटर बाइक हमारी रिस्पॉन्ड करती है वो 3 से 4 मिनट में रिस्पॉन्ड। मोटर बाइक 3 से 4 है, और गाड़ी जो है आपकी 7 मिनट है। 7 से 8 मिनट में। और रेस्क्यू करने का वो कितना टाइम ओवरऑल अपने ट्रेनिंग में जो दिया हुआ है? जी, ये तकरीबन हम जो इनको सिखाते हैं वो 5 से 6 मिनट के अंदर आपने पेशेंट को मैनेज करके और शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है टुवर्ड्स हॉस्पिटल, नियर टू हॉस्पिटल जो यस बिल्कुल। 5 से 6 मिनट, ऑलमोस्ट 10 मिनट लग जाते हैं। तकरीबन 5 मिनट पेशेंट को मैनेज करने में लगते हैं, और 5 मिनट जो है या 10 मिनट जो है पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में लगते हैं। और मीन वाइल सिर्फ उसको शिफ्ट नहीं करना होता, शिफ्टिंग दौरान पेशेंट की मैनेजमेंट चल रही होती है, उसके वाइटल साइंस चल रहे होते हैं, उसको ड्रिप लगानी है, उसको क्या करना है, उसको CPR करना है, व्हाट्सोएवर जो भी टेक्निक्स फर्स्ट रिस्पॉन्ड तमाम उनकी ट्रेनिंग में शामिल है कि पहले आपने किस चीज़ को रिकवर करना है, कि ये करेंगे तो जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उसको रोकना है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने, और ये जो हमारी एकेडमी ये नेशनल एकेडमी है, और ये नेशनल एकेडमी जो है वो इंटरनेशनली एक्रीडेटेड है डिफरेंट काउंसिल से, और वहाँ के कोर्सेज जिसके अंदर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं की जो SOPs हैं और करिकुलम है उसी को फॉलो किया जाता है सेम स्टैंडर्ड्स के ऊपर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये ट्रामा जो है यहाँ पे आपने एक रेस्क्यू करने का, मलेशियन टीम जो है उन्होंने रेस्क्यू किया, वो भी आपने देखा। लेकिन यहाँ पे सामने मुझे एक ऐसी जो लोगों ने सुना हुआ था एयर एम्बुलेंस का नाम, वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये रेस्क्यू 1112 की एयर एम्बुलेंस सर्विस है। ये देखिए, मैं इस इदारे का 1112 का क्रेडिट बनने का क्रेडिट जो है वो उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब को और परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला थे उनको जाता है। लेकिन ये देखें, ये साथ साथ जो भी हुकूमत आई उसने इसमें बेहतरी लेके आए। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका ये क्रेडिट जाता है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे था कि बहुत सारी जानें दूर दराज इलाकों से जब रेस्क्यू करते थे तो वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी, एमरजेंसी पेशेंट होते थे। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है हुकूमत पंजाब का कि उन्होंने ये एयर एम्बुलेंस 1112 एयर एम्बुलेंस जो है ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है ये डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने प्रपोजल दी और उन्होंने ये एक एयर एम्बुलेंस जो है उसका भी आगाज़ कर दिया है, जो इस वक्त फंक्शनल है और पंजाब में जो है दूर दराज इलाकों में ये अपना काम इसने आगाज़ बाकायदा कर दिया है। ये आपके सामने है जी, ये कोई स्टैचू नहीं है, ये हकीकत में ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये एयर एम्बुलेंस है। जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पे आज इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज के हवाले से एक वर्कशॉप हो रही है, पूरी दुनिया 23 ममालिक से यहाँ पे
لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے اندر آئے ہیں اور الحمدللہ یہ 1122 ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا ہوا ہے. میرے ساتھ اس طرح کے آؤٹ آف کنٹری کی ایک ٹیم موجود ہے. میں ان سے جانتا ہوں کہ یہ کہاں سے ہیں اور یہ کیسا پاکستان میں فیل کر رہے ہیں. ہیلو. Hi, ہاؤ آر یو؟ I'm good. ویئر آر یو؟ I'm Chinese. گڈ. چائنیز. It's good to see you. مائی بردر, آور بردر. Thank you. ویلکم ٹو پاکستان. Thank you very much. I appreciate. Yeah. How does it feel to be in Pakistan? Actually, yesterday is the first day to arrive here. So today is the first day to focus on the job. I like here. You know, everybody's friendly and we're good brothers. So this is what I can say. Yeah. What about international challenge competition? Sorry again? What about international competition? This year, we came here as an observer. So, but I promise next year we will attend it. Okay? Thank you very much and again welcome to in Pakistan. Okay, I appreciate. Inshallah. Yalla. Thank you. جی یہ کیمپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف ممالک سے جو پوری دنیا سے یہاں پہ ریسکیو کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ کوئی کنٹری نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ذات پات نہیں ہے, یہاں پہ صرف ایک ہی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے انسانیت کو بچانا کیسے ہے, ریسکیو کیسے کرنا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں تو ان سے نمٹنا کیسے ہے, اس کے لیے یہ لوگ یہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے یہ ریسکیو چیلنج کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل ریسکیو کے حوالے سے جو پاکستان جہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں. یہ آئی تھنک نیپال, اگر غلط نہ ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں. ہیلو. Hello. ہاؤ آر یو؟ Yeah, fine. Fine, sir. Fine. Very happy to come this beautiful country. ویئر آر یو؟ Pakistan. I'm from Nepal. Yeah. آور برادر نیپال. Yeah, brother. We are very close friends. Yeah, we are very close friends. We were close friend. We are close friend, and we would be remain very close friends. ویلکم ٹو پاکستان. Thank you, sir. Thank you. ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی ان پاکستان؟ It's very interesting, and we have a good time here in Pakistan. And as most of our team members is experiencing very well, and I would like to thank all the host and participate for welcoming us here inviting us in this very important and event in Pakistan. Pakistan has done very well in this search and rescue management system. So we are very excited to learn many more things from Pakistan, really. Sir, good name? My name is Ekadev Adhikari, and basically I belong to Ministry of Interior in Kathmandu. Great. And I work in National Emergency Operations Center there. And this is very relevant event for us too, to save every life of peoples which are in dangers. Sir, what is rescue? Rescue is a kind of evacuation or saving life of people, or sometimes it is also for animals too, which are in dangers because of human caused or natural disasters like things. No, this is so very kind of what to say, it is a kind of generous things also. It is a kind of very skilled job. So working those persons working in this field are very happy and satisfied in their job too. Thank you so much, sir. Thank you sir for this opportunity. آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفت آئے یا کوئی ایسے حالات ہوں تو الخدمت والے نوجوان ہمارے ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فری جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. تو میں ان سے جانتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج کے نام سے ایک
23 ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो इस हवाले से अल खिदमत वाले क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम जानना था। जी, मोहम्मद उमैर खादिम। तो आप क्या कहेंगे ये आज जो यहाँ पे सर इवेंट ये हमारा सेकंड डे है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट 7 कंट्रीज से लोग टीम्स आई हुई हैं अपना वॉलंटियरली एक दूसरे को ट्रेनिंग में, एक्सरसाइजेज में उनकी ट्रेनिंग में हेल्प कर रही हैं, उनको अपनी एबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। और हम इसके लिए कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं कि उनके लिए हमने फ्री वाटर सप्लाईज रखी हैं, फ्री फूड मैनेजमेंट रखी हुई है यहाँ पे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत शुरू से ऐसे ही जब भी कोई डिज़ास्टर या कहीं भी हेल्पिंग कवर होता है पाकिस्तान में, तो हम लोग साथ खड़े होते हैं, अपने लोगों के, अपनी जो कम्युनिटी होती है उसके साथ खड़े होते हैं। इसी तरह हम लोग इधर भी इनके साथ इनकी भलाई के लिए ही खड़े हुए हैं, इन्हीं की जहाँ पे हम हेल्प कर सकें, जहाँ हम इनके लिए काम आ सकें, उसके लिए ही हम यहाँ पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। ये सिर्फ नौजवान नहीं, जिस तरह हर फील्ड के अंदर ख़वातीन, आप मेरे पीछे दे रही होंगी, ख़वातीन भी बढ़ चढ़ के इसी तरह हिस्सा लेती हैं और शाना बशाना जो है मर्दों के साथ काम करती हैं। आप कोई भी आफत आ जाए, आप देखें वहाँ पे हमारी ख़वातीन भी काम कर रही हैं। तो ये एक, मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि ये एक ऐसा इदारा है 1112 कि जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर सर फ़ख्र से बुलंद किया। उसकी रीज़न ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा UNO ने सर्टिफाइड इसको डिक्लेयर किया है कि ये एक सर्टिफाइड इदारा है। जिस तरीके से ये काम करता है, एक एम्बुलेंस वैन से स्टार्ट हुआ और अब एयर एम्बुलेंस तक का सफ़र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये करप्शन से पाक, सियासत से पाक, जो भी हुकूमत आई, ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सियासतदानों का और हुक्मरानों का, जिन्होंने कि इस इदारे के अंदर कोई किसी किस्म की जो पॉलिटिकल इस तरह की एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी नहीं की। जो भी हुकूमत आई उन्होंने इस इदारे को मज़ीद फलने फूलने के लिए काम किया कि ये इदारा बेहतरी की तरफ काम कर रही है। देख रहे होंगे कि किस तरह 1112 की गाड़ियाँ जो है वो रेस्क्यू करने के लिए किस तरीके से अपना काम करती है, और किस तरीके से ये नौजवान देखें वो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फ़ख्र है, हमारा पाकिस्तान फ़ख्र है। और ये लोग जिस तरीके से जज्बा है इनके अंदर, देखें, मैं अगर पाक फ़ौज के बाद बात करूँ तो ये एक ऐसा इदारा है 1112 जहाँ पे कोई कुदरती आफत हो, जहाँ पे कोई ऐसा माहौल हो, जहाँ पे कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई सैलाब आ जाए, या जहाँ पे भी कोई ऐसा मामला हो, तो ये शाना बशाना जो है ये काम करते हैं अपने इदारों के साथ। पाक फ़ौज बेहतरीन एक इदारा है जो करप्शन से पाक है यहाँ पे, और ऐसे इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये हमारा ऐसे ही इदारे जो है सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये डेमो जो है पीछे ये अभी किया जा रहा है, अगर ये देखें कितने जज्बे के साथ जो है ये डेमो किया जा रहा है। पाकिस्तानी है या कौन सा मुल्क कर रहा है, ये आपको यहाँ पे डेमो करते हुए कि रेस्क्यू कैसे करते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, रेस्क्यू करते हुए बाकायदा जो है, ये पहले आपको दिखाया कि मलेशियन टीम ने किया, अभी पाकिस्तानी जो है वो कर रहे हैं। ग्रेट पाकिस्तान, एक्सीलेंट 1112। आज हमें देख के एक जज्बा आ रहा है कि वाकई पाकिस्तान के हमारे ये नौजवान, ये सपूत, हमारी ख़वातीन जिस तरीके से बढ़ चढ़ के ये रेस्क्यू कर रहे हैं। ये हमारे नौजवान हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अगर मैं ये बात करूं तो ये गलत नहीं होगी कि पाक फ़ौज के बाद अगर मुनज़्ज़म इदारा, और वह ऐसा इदारा जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का, देखे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका UNO सर्टिफाइड जो है इस इदारे को कह रहा है कि ये सर्टिफाइड रेस्क्यू 1112 जो पाकिस्तान का इदारा है, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई आज़ाद से कम बात नहीं है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है। तो ये वो सपूत हैं जो आपका नाम रोशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। तो मैं ये हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूंगा कि मेरा प्रोग्राम तो शिकायत है, लेकिन यकीन कीजिए यहाँ आके शिकायतें सारी खूह खाते हो गई हैं कि यहाँ पे तो शिकायत है ही कोई नहीं। ये तो वो लोग हैं जो इंसानियत की जान बचाते हैं। और यहाँ पे कोई, ये एक आज जान के ये खुशी बात हुई कि 23 ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो सब कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, कोई इंग्लैंड का, कोई नेपाल का, कोई चाइना का नहीं है, सारे रेस्क्यू हैं कि वो इंसान, एक ही एजेंडा है कि इंसानियत की जान कैसे बचानी है। ये इंसानियत की जान बचाने के लिए यहाँ पे वर्कशॉप और ये जो सेमिनार हो रहा है इंटरनेशनल, ये इस वजह से हो रहा है। और ये भी एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है 1112 रेस्क्यू के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का टैलेंट जो है
पाकिस्तान के कोने कोने में छुपा हुआ है, अगर ये निकाला जाए तो हर शोबे के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है। पाकिस्तान। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।